Hello everyone, welcome to EduTap. So we know that IFSCA Grade A Phase 1 examination is on 11th of October. And as a part of this video, we are going to discuss 4 things that you must carry to the exam center. Because if you're not carrying these things, what is going to happen? Either you won't be allowed to enter the examination hall, or you might face last moment anxiety that you would not like to happen, right? So we are going to discuss these 4 things one by one. But before we discuss that, just a small announcement. We know that previous year papers play a very important role if we are preparing for any competitive exam, including IFSCA Grade A. So what you can do, you can go to the description box, click over the link, and from there you can download these previous year papers that will help you to understand trend, pattern, and difficulty level with respect to this examination. Now moving forward, let us discuss the first thing, and it is very much obvious. It is your admit card. Now we all know that admit card is something that you need to carry. It is essential, but please remember that कि एडमिट कार्ड को लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना. मैं हमेशा कहता हूँ ये. कई बार ऐसा होता है कि 11 तारीख को आपका पेपर है, आप सोच रहे हो 10 तारीख की शाम को मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लूंगा या रख लूंगी. बट द पॉइंट इज दैट बहुत बार ऐसे होता है कि वेबसाइट्स का सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है. तो उसकी वजह से यू माइट फेस लास्ट मिनट challenges, last minute difficulties. So in order to avoid that, it is advisable that you are able to download your admit card as soon as possible. ये सबसे पहली चीज है. और ये कहां से मिलेगा आपको? ये आपको IBPS की वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है. तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज करने हैं, which is your roll number and password, and you can download your admit card easily. तो जल्द से जल्द इसको डाउनलोड कर लेना, लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना. Now the second thing. The second thing is very important, which is your photograph, right? Why your photograph is needed? Of course, because you will have to affix your recent photograph on your admit card, right? और उसके यहाँ आपको साइन भी करना होगा. एंड अगर आपके पास डिजिटल कॉपी है अपनी फोटो की, तो मेक श्योर दैट कि आपके फिजिकल कॉपी भी हो. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ईमेल में पुरानी फोटो पड़ी होती है जो भी हमने यूज की है, उसकी फिजिकल कॉपी नहीं होती, राइट? तो लास्ट मोमेंट के लिए इसे भी मत छोड़ना. तो जल्द से जल्द अपनी फिजिकल कॉपी निकलवा लो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, and make sure that you carry that, right? And also you need to ensure that whichever photo you are using over here, it should match with the photo that you had used while filling the application form. This is another important thing that you need to consider, right? So it is written on your call letter that the photo that you're using, it should match the one uploaded in the online application form. So you have to make sure that it is done. Now the third thing is also very important, which is nothing but your ID proof. Now you need to carry your original ID proof, no doubt regarding that, but आपको एक फोटो कॉपी भी लेके जानी होगी उसकी, because you will have to staple this photo copy along with your admit card while you entering the examination hall. तो फोटो कॉपी वाला काम भी कर लेना, ठीक है, इसको पेंडिंग मत रखना. तो आईडी प्रूफ हो गया, फोटो कॉपी हो गया. अब कौन सा आईडी प्रूफ चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा? तो ये सारे आईडी प्रूफ चलेंगे. बहुत ही सिंपल है. पैन कार्ड सबके पास होगा, ठीक है, नहीं हुआ तो आधार कार्ड तो सबके पास होगा ही, राइट? तो इसमें से कोई भी ले जाना. ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, वोटर्स कार्ड भी चलेगा, बट उस वोटर कार्ड के ऊपर आपकी फोटो होनी चाहिए, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये याद रखना कि राशन कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर हैविंग दिस ड्राइविंग लाइसेंस, तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है, दैट वुड आल्सो नॉट बी एक्सेप्टेबल, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट whichever ID proof you are using and whatever name has been written in that ID proof, it should exactly match with the name that you have used while filling the application form. ठीक है. तो मान लो आपका नाम कुछ भी है, राम शर्मा है, श्याम शर्मा है, जो भी आपका नाम है, वही नाम आपका आईडी प्रूफ में भी होना चाहिए. कुछ लोग की जैसे फीमेल्स होगी, उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, तो कुछ लोग शादी के बाद कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग शादी के बाद नाम चेंज करा लेते हैं. तो उस सिनेरियो में आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी कैरी करना होगा, ठीक है. तो जो भी आपका एक्सप्रेस रीजन है जिसकी वजह से जो आपका नाम है वो कॉल लेटर के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इधर यू हैव टू कैरी सम गैजेट नोटिफिकेशन, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर कोई एफिडेविट कैरी करना होगा, सो दैट बेसिकली यू कैन सपोर्ट द चेंज इन योर नेम, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. तो अगर नहीं है ऐसा कुछ, तो कोशिश करना कि ये सब चीजें अरेंज हो जाए आपकी. बट क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे. यू वोंट बी अलाउड टू एंटर, राइट? तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग. तो ये बहुत ही बेसिक चीज है. बॉल पॉइंट पेन ले जाना, वहां लिखा हुआ है तो आपको यही ले जाना है जो वहां लिखा हुआ है. जेल नहीं लेके जाना है, आपको बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू कैरी योर ओन इंक स्टैम्प पैड ऑल्सो, ठीक है. ये भी आपकी एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि इंक स्टैम्प पैड लेके जाना है. अगर आपको वाटर बॉटल लेके जानी है तो कोशिश करना वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेके जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ सेंटर्स में वो जो आपकी जो डिजाइनर वाटर बॉटल होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो मेक श्योर दैट व्हाटएवर वाटर बॉटल यू आर कैरिंग इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, तो उससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग.
So let us summarize. First of all, admit card. Secondly, ballpoint pen as well as ink stamp pad also. Carry your ID proof in original as well as photocopy. उसके बाद जो लोग पहली बार अपीयर हो रहे हैं ऐसे एग्जामिनेशंस के लिए, शायद आपने एडमिट कार्ड पे ये फर्स्ट टाइम देखा होगा कि यार ये हैंडराइटिंग सैंपल कुछ लिखा हुआ है. सो यू डोंट हैव टू फिल दिस हैंडराइटिंग सैंपल बिफोर द एग्जामिनेशन. व्हेन यू विल एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, जब आपका स्क्रीन सेटअप सब कुछ हो जाएगा, तो ये जो हैंडराइटिंग सैंपल की लाइंस है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे और उसी समय आपको वहां से कॉपी करके लिखनी होगी एग्जामिनर के सामने. एंड ये जो बाकी की डिटेल्स है ये सब आप आई वुड से इन्विजिलेटर के सामने ही लिखोगे. एंड उसके बाद यू विल हैव टू डू योर सिग्नेचर, योर थंब इंप्रेशन एंड इन्विजिलेटर इज गोइंग टू साइन. तो इसको पहले से भर के नहीं रखना है आपको कुछ भी यहाँ पर, ये सब आप वहीं पर जाकर फिल करोगे. ठीक है. सो जो लोग पहली बार दे रहे हैं उन्हें शायद ना पता हो, सो दिस इज जस्ट फॉर यू. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज इसे मत भूलना. ठीक है. एग्जामिनेशन सेंटर में 15 मिनट से पहले पहुंच जाना. मेरा सजेशन ये होगा कि कम से कम 25 मिनट्स पहले आप पहुंच जाओ. ठीक है. एग्जामिनेशन सेंटर में 25 to 30 मिनट्स पहुंच जाओ. जल्दी जाने का कोई नुकसान नहीं है, आप आराम से पहुंच जाओ. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हम लेट पहुंचते हैं तो लास्ट मोमेंट एंजाइटी होती है. और मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम है इसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, तो छोटे मोटे फैक्टर्स, मतलब ये सब बीच में बैरियर्स नहीं आने चाहिए. ठीक है. सो ट्राई टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल एज सून एज पॉसिबल. एज सून एज पॉसिबल का मतलब है कि आधा घंटा पहले तो कम से कम पहुंच जाओ. ठीक है. 15 मिनट तो लिखा हुआ है, बट आप आधा घंटा पहले पहुंच जाओ ताकि आप काम रहो. And you can go, you can enter, and you can sit at your place, and then you can put all your energy and efforts with respect to exam, right? जिसके लिए आपने तैयारी की है. So that is it from my end, and all the best for your examination. But before I end the video, let me also tell you that how EduTap can help you as a part of your preparation. So what you have to do, you just have to go to a website which is edutap.in. And if you open it, you can see it over here that we have this courses section. So if you're looking for IFSA grade A courses or some other courses, what you can do, you can just scroll down and here you can see that we basically provide combo courses. Then we have the single courses also. We have test series. Suppose if you want to prepare for IFSA grade A phase 2, right? Also sort of things. So you can go through it. And if you think it can help you, you can definitely check it out. So that is it from my end. I hope these instructions were helpful for you. And all the best for your examination. Don't overthink and don't be anxious. Just give your best. Focus upon things that are under your control. So thank you so much and all the best.